Hello and very warm welcome to all our viewers and aspiring entrepreneurs. We are so glad to see you, so many entrepreneur, investor, and a future franchise owner joining us today. My name is Harish, and I am your host and franchise growth consultant from Franchise Discoveries. Franchise Discoveries is India's first tech-enabled franchising platform that connects investor with a brand. Started in 2018 with the dream of making franchising seamless and to help people for achieving their entrepreneurship journey easily. With the help of technology, research, and right guidance, we brings into the trust and transparency into your franchising journey. At Franchise Discovery, your dream of starting a franchise business is our dream to make it real. And today's session is going to be very high, special, and impactful because we have a true retail visionary with us. He is the man who transformed affordable everyday Indian ethnic wear into a modern, scalable, and profitable retail powerhouse. Please welcome Mr. Sandeep Kapoor, co-founder and managing director of brand Shri, India's fastest growing women ethnic wear brand. Sir, thank you for your time. We are excited to learn about your journey, your vision, and your deep insight into entrepreneurship and sustainable franchising. Thank you, Harish. Thank you for the introduction. So, sir, before I deep dive into the critical investor topic, I want our audience to fully understand your inspiring journey. Sri Okay. started from a single store, and today it has grown into a nationally trusted, high recall brand. Your story is truly motivating for every founder and aspiring entrepreneur entering the dynamic Indian fashion industry, sir. So, we just wanted to know your overall journey so far, sir. I started my journey as an entrepreneur in textile and apparel space in 1987. So after graduating, I came to Delhi, started a small manufacturing unit of garments. I was making menswear those days. So then going forward, इंडिया का मार्केट उस टाइम इतना बड़ा नहीं था. इट वाज ए वेरी स्मॉल. But I was my interest was towards textile industry. I started learning all about the Indian retail industry. Got in touch with a lot of retailers. I worked for them. I made customized garment for them. I did in multiple categories, and going forward, the modern retail came in the market. I mean, a lot of LFR, flourished in year 2001, 2, 3. If you see, Pantaloon scaled up, Shopper Stop came in, Lifestyle came in. So I worked with many of them, uh, working with them in multiple categories, in different kind of clothing. So with a experience of almost 25, 30 years. So 2009, I mean, when my wife joined me in the business, so we started Shri. So although the market was not welcoming for a newcomer those days, I mean, we started online when India didn't had any e-commerce site. So we used to sell in international markets through eBay.com, Amazon.com. So that's how it started. So people loved our product. So we worked, extensively on our product line. We wanted India to, wear the desired clothing, which is functional, which is wearable for the tropical climatical conditions. So we started a brand which was, very, very reasonably priced with the natural fibers. As you know, इंडिया में since we are into North India, तो 10 महीने तो गर्मी है, and rest of the India has almost 11 months of summer. So we have, female working housewives who are going out for shopping, for kitty parties. So they need some functional clothing which is wearable, breathable, and has a good fall for the garment. So that's we worked on that, and we created this brand. People loved it. So from the day one, I mean, our repeat buyer was very good. Customer was encouraging. They liked the product. They liked our designs. They liked our prints. So we don't make garments with a fabric. We create garment from the yarn stage.
So we create our fabrics at our own, कि कैसा गारमेंट, उसका जीएसएम कितना होना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, किस तरह के कलर चाहिए, बिकॉज वी हैव डिफरेंट सीजन्स इन नॉर्थ इंडिया। जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप देखोगे तो एवरी मंथ हैज अ डिफरेंट सीजनैलिटी। सो विंटर भी है, एक्सट्रीम विंटर भी है, एक्सट्रीम समर भी है। सो वी क्रिएट आर रेंज, कीपिंग इन माइंड द टाइम, सीजन, वेदर of the size, I mean the country, and we create our range. For us, each month is a न्यू सीजन फॉर अस। मैं ये कहता हूँ कि कपड़े पहने नहीं जाते, कपड़े महसूस किए जाते हैं। दैट्स व्हाट वी ट्राई टू प्रोवाइड टू आवर कस्टमर। आप सर, आपने पेंटालून में एंड रिटेल इंडस्ट्री में काफी टाइम काम किया सर। सो ये श्री का कोर आइडिया कैसे आया सर? व्हाट वाज द डिफाइनिंग मोमेंट दैट यू मेड यू रियलाइज दिस वाज अ मल्टी क्रोर अपॉर्चुनिटी? I started my career from the menswear. I work with my own design team. We don't, create whatever is available in the market. We just copy that and we make it. We don't do that. We were given a task from Future Group to create a collection which is for the ethnic wear, and we created our first range of set of samples to present them. We got a biggest order what I could have imagined. The first order was about 6 crore rupees, which was huge for us. And the following order was more than 10 crore, which gave us a kick. The sellability of those orders what we supplied was also, acceptance was great. People loved it. The pricing, the fabric, the silhouettes was great. And there was certain limitations that we were not able to serve to the customer, because when you are working for somebody, there are some price barriers, some limitations that you have to, you cannot freely work what you want to create. वाई श्री का जन्म इसीलिए हुआ कि हम लोग फ्रीडम से कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे थे। वो श्री में हमें वो फ्रीडम मिल गई और वो कस्टमर को हमने पहनाया। दैट्स इट। My first customer was my wife. She never worn my garment because she always used to say, "ये कपड़ा ये ऐसा है वैसा है." When we created the first garment, first lot of Shri, she wore it very happily. She was a satisfied customer and she loved it. आपका internal customer है कि आपका external customer है? So satisfy your internal customer is very important. Unless you satisfy your internal customer, आपका external customer कैसे खुश होगा? So each and every garment is worn, tested by our own in-house team. So once it is approved, then we go ahead for the production. So the product is very very important for a brand to become a brand. यस यस सर, मैंने भी देखा, मैंने भी थोड़ा सा रिसर्च किया था। 2009 से 2015 में श्री आपने पहला अपना रिटेल स्टोर स्टार्ट किया दिल्ली में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Because राइट? we were available B2B. We were selling to multiple retailers. वहाँ प्रोडक्ट बिक रहा था, अच्छा बिक रहा था, रिपीट्स were good, but we didn't knew who's our customer. So we were not directly interacting with the customer, whether he's happy or unhappy with the product. So we tested out in 2015 late with the first store. People loved it. देन 5 6 7 100 कब खुले पता भी नहीं चला। सो और सो वी अंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। उसको प्रोडक्ट क्या चाहिए, पहले उसके प्रोडक्ट के ऊपर काम किया, देन उसके बाद में हमने कस्टमर एक्सपीरियंस पे काम किया। देन व्हेन यू मेक ए प्रोडक्ट एज ए मैन्युफैक्चरर, you don't take care of the width of the स्टोर। एक रिटेल स्टोर पे आपका प्रोडक्ट कैसा दिखना चाहिए। सो वी एडेड मल्टीपल कैटेगरीज। इनिशियली वी वर मेकिंग ओनली टॉप वेयर, फिर बॉटम वेयर किया, 2 पीसेस सेट किए, 3 पीसेस किए, वट एवर कस्टमर इज आस्किंग, वी आर ट्राइंग टू फीड देम विद द डिजायर्ड कैटेगरीज। जब 10 20 दुकानें खुल गई, देन उसके बाद में हमने कस्टमर एक्सपीरियंस पे काम करना शुरू किया कि कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाना कैसा है, उसका शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, उसका ट्रायल रूम एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, आपके स्टाफ की ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, आपके एसओपीज प्रोसेसेस क्या होने चाहिए। सो वी वर्कड ऑन दैट एंड देन वी स्टार्टेड फ्रेंचाइजिंग जस्ट 2 years बैक।
So initially Okay. we started with the only company on company operated stores. So Okay. so we wanted to understand एक franchisee की need क्या है, what are the pain points he's going through. So we worked upon that. हमने एक मॉडल बना दिया, देन उसके बाद में we offered it to the investors. जैसा कि आपने बताया कि कस्टमर अंडरस्टैंडिंग करके ही आपने ब्रांड को एक स्टोर से आज ऑलमोस्ट 100 प्लस स्टोर है श्री के, 124 राइट? 125 140। इंडिया में है, एंड आउट ऑफ इंडिया वी हैव अबाउट 7 स्टोर्स. ओके, इंटरनेशनल स्टोर्स भी है। ओके, ग्रेट ग्रेट सर। सो मैं अगर सर कॉम्पिट लाइक ब्रांड स्ट्रेंथ और मार्केट पोजीशनिंग की बात करूं, सो द मार्केट इज कॉम्पिटिटिव, राइट? तो फंडामेंटली हाउ श्री इज डिफरेंट एंड स्ट्रॉन्गर देन अदर एथनिक वेयर ब्रांड, सर? व्हाट इज द यूएसपी ऑफ योर ब्रांड, सर? For us, product is first. So we work राइट। extensively on the product, because आपका प्रोडक्ट अगर हीरो है तो आपका कस्टमर आपके साथ चलेगा, नहीं तो कस्टमर आपको आपका कभी भी शिफ्ट कर जाएगा किसी और ब्रांड पे. आर प्राइसेस आर वेरी रीजनेबल. हम चाहते हैं कि कस्टमर को एक वैल्यू फॉर मनी दिया जाए और एक उसको अच्छा प्रोडक्ट दिया जाए जिसमें उसको कोई पोस्ट बाइंग उसका कोई कंप्लेंट नहीं होना चाहिए. यू लुक एट आवर साइजेस, इफ यू गो टू एनी ब्रांड यू ट्राई 5 डिफरेंट लार्ज साइज, तो हर साइज में आपको थोड़ा वेरिएशन आएगा. किसी को मीडियम आ रहा है, किसी को लार्ज आ रहा है. You go to my store, you will find all 100 styles are placed in the shop. All large will be same, all medium will be same. We basically we take care of the specs part, कि आपके specs में कोई भी changes नहीं होते. तो you can blindly buy your size, either you are buying from any of the shop in the country. Then we guarantee our product. अगर कोई कस्टमर प्रोडक्ट में कंप्लेंट लेके आता है, वी डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, लिटरली वी जस्ट एक्सचेंज द पीस. ओके, तो सर वो डिमांड कंसिस्टेंसी हम कैसे मेंटेन करते हैं, सर? लाइक श्री का वो पावरफुल रिपीट परचेज ब्रांड इन कंज्यूमर माइंड, मतलब डिमांड कंसिस्टेंसी, एंड व्हाट मेक्स श्री अ पावरफुल रिपीट परचेज ब्रांड इन द कंज्यूमर माइंड? In this category, if you talk about ethnic wear, there are lot of creation can be done. We are basically creating our range with a different kind of flavor. आपको पता है इंडिया में कितने रीजनल क्राफ्ट हैं. आप पंजाब में चले जाओगे तो फुलकारी मिलेगा, गुजरात में चले जाओगे तो वहाँ का कच्छ का फ्लेवर मिलेगा, आंध्रा में चले जाओगे तो आपको इक्कत मिलेगा. सो वी वर्क ऑन डिफरेंट क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया. तो उसके ऊपर हम अपनी रेंज बनाते हैं. वी ट्राई टू गिव ए फ्रेशनेस टू एवरी स्टोर बाय एवरी मंथ, सो दैट कस्टमर जब वापस जाता है उसको कुछ ना कुछ नया दिखना चाहिए. एंड women wear is all about फैशन. नया क्या राइट। हो रहा है, एंड there are lot of colors you can play upon, and every month every करेक्ट। season has a कलर का वाइब्रेंसी. फॉर एग्जाम्पल आप अगर मार्च अप्रैल में कुछ बाइंग कर रहे हो तो आपको बड़े पेस्टल सूदिंग कलर चाहिए, लाइट वेट फैब्रिक चाहिए. थोड़ा आप जुलाई अगस्त में चलते हो तो राखी आ जाती है, करवा चौथ आ जाता है, देन यू नीड सम ब्राइटर कलर्स. थोड़ा आप दिवाली की तरफ जाते हो तो आपको वाइब्रेंसी चाहिए. तो हाउ यू प्ले विद द कलर्स एंड योर स्टाइल्स, द कस्टमर इज बाउंड टू कम बैक. सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो वर्कवेयर बनाते हैं तो वर्कवेयर में उसको एक विमेन को कुर्ता चाहिए विच इज़ वेरी वेरी सिंपल विद स्मार्ट डिटेलिंग विच शी कैन वेयर टू द ऑफिस. मे बी शॉपिंग के लिए जाना है वो पहन लिया, पार्टी में जाना है तो उसके लिए थोड़ा सा वैल्यू एडिशन चाहिए, शॉपिंग घर में बैठना है तो थोड़ा कैजुअल वेयर चाहिए विच इज़ कंफर्टेबल एंड शी कैन रिलैक्स एट होम. So you have to create different thought process while creating a garment. कि मेरे को क्या बनाना है, मेरे को वर्क वेयर बनाना है या मेरे को इवनिंग वेयर बनाना है या मेरे को अपना घर पे बैठने के लिए घर पे। वेयर चाहिए. मतलब आपने सर काफी मतलब एकदम डीप रिसर्च करके, और ऐसा नहीं है कि अगर अभी दिवाली है तो दिवाली के बाद सेल नहीं होगा, टाइम के अकॉर्डिंग ने आपने सारे कपड़े अपने डिजाइन किए हुए हैं, राइट? एज पर द ओकेशन जो इंडिया में होते हैं वो हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल. यस, तो दैट्स ग्रेट पॉइंट, जैसे सर। जैसे दिवाली के बाद में आप जाते हो तो आपका वेडिंग सीजन शुरू हो जाता है. तो आपको वेडिंग के लिए भी कोई पार्टी पे जाना है, किसी फंक्शन पे जाना है तो आपको वैसे भी कपड़े चाहिए. तो हमारे लिए वेडिंग सीजन शुरू हो जाता है. पोस्ट वेडिंग सीजन, देन वी हैव विंटर सीजन इन नॉर्थ इंडिया.
तो थोड़ा आपको मोटा कपड़ा चाहिए, थोड़ा वार्म चाहिए, थोड़ा वुलन चाहिए, जस्ट टू टेक केयर ऑफ विंटर्स। जैसे ही आप एग्जिट करते हो विंटर को, तो आपको समर चाहिए, बिकॉज समर वेयर आ जाता है, समर में। आउटर वेयर उतर जाता है, आपको इनर वेयर चाहिए। एवरी मंथ इज ए न्यू सीजन फॉर अस, बिकॉज ओके। दैट्स द ब्यूटी ऑफ वुमेन्स वेयर। विमेंस अदरवाइज है। अगर मेंस बिजनेस में देखोगे तो आपने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम विल मीट, you'll be probably wearing white or light blue or gray, that's it. There are very few करेक्ट। colors you can play. You'll never go for yellow shirt or orange shirt. This is liberty of women's wear. You can play with the colors. एंड अभी मैं अगर इन्वेस्टर्स के पॉइंट से अगर बात करूं सर, लाइक यूनिट इकोनॉमिक्स आर द मोस्ट क्रिटिकल मेट्रिक, राइट? सो लाइक कैन यू शेयर द एवरेज मंथली ग्रॉस सेल फॉर श्री स्टोर्स अक्रॉस टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3, मतलब उनका मंथली ग्रॉस सेल्स। इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट, लोकेशन, द सिटी। कैटेगराइज करें तो हमारे, ये आपने जो दिया है वो कॉस्ट बाइफर्केशन दिया है। सो रफली 6% इज अ सैलरी, 12% इज अ रेंटल, और प्रोडक्ट कॉस्ट इज 70 रुपीज। हमें 30% वी शेयर द मार्जिन विद अ फ्रेंचाइजी। सेल्स की बात करते हैं तो वो डिफरेंट एरिया, डिफरेंट मार्केट, डिफरेंट, उसका अलग अलग इकोनॉमिक्स है। सो जैसे हम कैटेगराइज करते हैं A B C, सो आर ए जोन स्टोर्स डज 25 to 30 lakhs a month, so B store does about 7 lakh to 15 lakh rupees sale, and C store falls under 5 lakh to 8 lakh rupees. So उसका रेंटल भी उसके हिसाब से होगा, उसका राइट। आपका मार्केट भी उसी हिसाब से होगा। तो बी राइट। में वैसे वर्षा आपका रफली 12% का रेंटल कॉस्ट हमारा आता है। ओके। That's that's a and depends on the location also. I mean, रिटेल में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इज द लोकेशन ऑफ द स्टोर। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आई मीन एक ही मार्केट के अंदर एक ही एड्रेस के ऊपर अगर आप 10 दुकान आगे चले गए, तो दैट माइट गिव यू सम अदर नंबर। एग्रीड, एग्रीड सर। तो मतलब लोकेशन बहुत मैटर करता है रिटेल में, दैट्स ट्रू सर। Maybe a 10 shop away, your rental would cost you 50,000 more, but the sale would justify. What is the gross margin percentage and the achievable net margin range, sir, post rent and OpEx, that a franchise partner should budget for? If you talk about the realistic number, that will range between 12 to 16%. Okay, Depends okay, what kind of top line you do. So typically आपका जो स्टोर का ROI है 12 से 18 महीने के अंदर अंदर आ जाता है। वी शेयर अबाउट 30% मार्जिन नेट ऑफ टैक्सेस, एंड there is no liability, no baggage on the franchisee. Whatever stock is sold, whatever is not selling, we pull it back. 100% okay, स्टॉक करेक्शन देते हैं हम, उसका कोई लाइबिलिटी नहीं है। नॉर्मली देर इज ए सर्टन परसेंटेज गिवन टू द फ्रेंचाइजी, भाई आपको 20% स्टॉक करेक्शन होगा। इन आर केस वी डू 100% स्टॉक करेक्शन, दैट फ्रेंचाइजी शुड नॉट be left with the unwanted stocks which is not selling and unnecessarily taking the shelf space. ये बहुत अच्छा पॉइंट है सर। लाइक टिपिकली मैंने ये देखा है कि रिटेल में अगर मैं क्लोथिंग में हूँ, तो अगर वो डेड स्टॉक है तो उसमें कुछ सर्टन 20-30% डिडक्ट करके कंपनी उसको वापस लेती है। श्री में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जो इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ये प्लस पॉइंट है कि अगर कोई डेड स्टॉक है तो कंपनी उसको विदाउट एनी लाइबिलिटी उसको पुल बैक कर ले रही है। तो ये सबसे ये अच्छी बात है। हमारी बैकएंड टीम वीकली बेसिस वी एनालाइज द स्टॉक, कौन सी स्टोर पे कौन सा अनवांटेड स्टॉक पड़ा हुआ है, वी पुल इट बैक ऑन फोर्टनाइटली बेसिस। हर 15 दिन में आपको नया स्टॉक जाएगा, हर 15 से 20 दिन में आपसे GR आएगा जो आपके पास नहीं बिक रहा है, बिकॉज आपका शेल्फ स्पेस जो है दैट इज कॉस्टिंग यू अ लॉट। आपका एक राइट। शेल्फ की भी कॉस्ट है, बिकॉज यू आर पेइंग सैलरी, यू आर इनकरिंग रेंटल, आपका बिजली पानी का सब खर्चा हो रहा है। तो अगर एक शेल्फ पे भी अनवांटेड स्टॉक पड़ा हुआ है तो आपका वो पैसा वेस्ट हो रहा है। तो वी वांट कि भाई आपके पास जो भी होना चाहिए वो सेलेबल होना चाहिए और वो बिकना चाहिए। नहीं बिक रहा है तो वी पुल इट बैक। ओके। एंड इसमें सर हम बिफोर गिविंग फ्रेंचाइजी टू एनीबडी, हम बेसिकली हमारा कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है बिफोर गिविंग एनी फ्रेंचाइजी टू एनीबडी? इज देयर यस, एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट? मैं आपको यही बोलूँगा,
if you are in the right location. And we definitely speak to the franchisee also whether he or she understand the retail. दुकान को डेवलप करने के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपको ओपन रहना पड़ता है। मैं वही करेक्ट। बोल रहा हूँ ना कि बिफोर गोइंग गोइंग आउट फॉर फ्रेंचाइजिंग हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया इसके ऊपर, whether we can start franchising, because there were a lot of pain points from the franchisee side. We wanted to resolve that, because कल को मेरा फ्रेंचाइजी अटकेगा तो वो प्रॉब्लम उसको होएगी, बिकॉज ही इज एन एंटरप्रेन्योर, ही इज सेव्ड हिज मनी, इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, और वो बिजनेस नहीं चलता है तो he should be comfortable doing. So we developed lot of tools at the back end, जिससे हम उसको हेल्प करते हैं स्टाफ रिक्रूट करने में, स्टाफ की ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, उसको कैसे प्रोडक्ट को दिखाना है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट लाइन आती है तो हम उसका पूरा एक ट्रेनिंग मैनुअल भेजते हैं उनको कि ये प्रोडक्ट क्या है, आपको कस्टमर से क्या बात करनी है इस प्रोडक्ट के बारे में, ये किस करेक्ट। लिए बना था, क्या ये ऑफिस पहनने के लिए या शाम को पार्टी पे जाने के श्योर। लिए या कहाँ के लिए। तो उसके पास टॉकिंग पॉइंट्स होने चाहिए कस्टमर से कम्युनिकेट करने के लिए। कस्टमर से क्या बात करेगा कि ये गारमेंट किस लिए है। तो वो कोई कस्टमर प्रॉब्लम लेके आता है अपनी कि मेरे को जी मेहंदी के फंक्शन पे जाना, उसके लिए मेरे को गारमेंट दिखाओ, तो वो उसको 10 दिखाएगा स्पेसिफिकली जो उसी फंक्शन में या उसी ओकेजन के लिए फिट आते हैं। वी शुड बी देयर टू सॉल्व कस्टमर्स प्रॉब्लम, नॉट टू सेल हिम। कस्टमर आता है अपनी रिक्वायरमेंट लेके, मेरी भाई ये रिक्वायरमेंट है, मैं ऑफिस जाती हूँ, मेरे को 6 कुर्ते चाहिए जो मैं रोज पहन सकूँ, तो आर स्टाफ शुड बी एबल टू ऑफर हर के मैम ये 8 कुर्ते हैं आपके लिए, ये आप ले जाओ आराम से, आप ऑफिस पहन सकते हो, फंक्शनल है, पॉकेट लगी हुई है, आपको मोबाइल फोन रखना है, आपको चाबी रखनी है गाड़ी की, दिस विल बी परफेक्ट फॉर यू। सर देखो, अभी इन्वेस्टर में मोस्टली क्या होता है कि अभी जो एस्पायरिंग एंटरप्रेनर है, उन्होंने एक सर्टन फंड्स जमा कर लिया, अब उनको रिटेल सेक्टर में आना है। ओके। तो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि यार क्या लोकेशन में हम लोकेशन फाइंड आउट में आप हेल्प करते हो, लोकेशन साइट सिलेक्शन में ब्रांड उनको हेल्प करती है? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, हमारी बीडी टीम है, हमारी ओके। टीम के साथ अलाइन होके वेदर दे आर रेंटिंग द प्रॉपर्टी एट द राइट प्राइसिंग, हम लोग पूरा पूरा मार्केट में रिसर्च करके उसको हैंड होल्ड करते हैं कि भाई आप ज़्यादा रेंट पे क्यों ले रहे हो, आपको इतना रेंट होना चाहिए, तो वी नेगोशिएट ऑन द बिहाफ ऑफ द फ्रेंचाइजी ऑल्सो। उसके अलावा जब उसको दुकान बनानी है तो हमारी प्रोजेक्ट टीम उसको पूरा पूरा बीओक्यू, पूरा कैड, एक एक चीज़ की डिटेल देती है, सो दैट आप कहीं पे भी कोई गलत सामान नहीं खरीद लो। वी स्पेसिफाइड ओके। द भाई ये शेड नंबर है, ये कंपनी का आता है, ये 4 कंपनी है, इनमें से चारों में से ये शेड नंबर किसी का भी ले लीजिए। देन जब स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए होता है तो तब भी हम उनकी हेल्प करते हैं, स्टाफ रिक्रूट होता है तो उसकी ट्रेनिंग भी हम लोग करते हैं। सो वी डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड कि भाई कल को फ्रेंचाइजी जाके कहीं अटक जाए। इसमें एक एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं सर, जैसे मैंने फ्रेंचाइजी अगर लिया, ठीक है, हम्म। अब अगर फॉर फॉर एनी रीजन अगर वो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है वो मार्केट में, तो उस केस में एज अ ब्रांड हम कैसे उसको सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग? हम उसको कैसे हेल्प करते हैं उससे ओवरकम आने के लिए, अगर कहीं का सेल्स जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस? उसके लिए देर आर सर्टन पैरामीटर्स कि आपका प्रोडक्ट लाइन जो है वो उस मार्केट से अलाइन है या नहीं है। बिकॉज कस्टमर है, अगर दुकान सही लगा जगह पे है, फुटफॉल भी है, सेल नहीं हो रही है, तो उसका कोई कारण होगा। मे बी करेक्ट। करेक्ट। मे बी दैट पॉकेट साइज और जो जो प्रोडक्ट लाइन है वो मिसमैच है, तो उसको मैच करना जरूरी है। कस्टमर आ रहा है, पहली बात तो है हमें दुकान वहां खोलनी है जहाँ कस्टमर का फुटफॉल है तो उसको क्या चाहिए, अगर आप मैच कर देते हो तो यू डन इट, देयर इज नो अदर साइंस। डिमांड एंड सप्लाई है, अगर आप एप्पल लेने गए हो, अगर एप्पल की जगह बनाना मिल रहा है तो आप कभी नहीं खरीदोगे, तो आप एप्पल मिल रहा है तो आप खरीदोगे। तो करेक्ट। दीज आर लिटिल इनिशियल हिकअप्स जो कि मैच करने पड़ते हैं। हमारी टीम दुकान खुलने से पहले भी मार्केट में जाती है, वी रैकी द मार्केट कि कस्टमर का पॉकेट साइज क्या है, किस तरह के कपड़े पहने हुए लोगों ने, क्या टू व्हीलर का मार्केट है या 4 व्हीलर पे लोग आ रहे हैं, उनका जो गारमेंट पहना हुआ है वो क्या प्राइस रेंज का है। सो वी कंप्लीटली रेकी द मार्केट, थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग रेंज को वहाँ पे प्लेस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो माल बन रहा है मेरी हर दुकान, एवरी शॉप इज़ ए डिफरेंट स्टोरी सर।
करेक्ट करेक्ट करेक्ट। I have two shops in one market, but one shop sells, उसका ASP अलग है, दूसरे का अलग है. For example, we have two shops in Lajpat Nagar. So one shop, I mean, they both does the same numbers, 30 to 35 lakh rupees per month they do, but एक का ASP X है, दूसरे का Y है. So because वहाँ पे फुटफॉल अलग है, वहाँ पे कस्टमर का करेक्ट। साइज अलग है, तो यू हैव टू मैच दैट. अगर कोई इन्वेस्टर है, हम फोको मॉडल में काम करते हैं, ऐसा कोई इन्वेस्टर है जो आप ब्रांड के साथ में फोको मॉडल में काम करना चाहते हैं, उसके पास जो स्पेस है वो मतलब हाई फुटफॉल एरिया में है, तो उस केस में क्या ब्रांड फोको मॉडल में का मतलब उनके साथ काम करती है? इवेल्युएट कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट. ओके ओके। एंड अभी सर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, क्योंकि सर आप रिटेल सेक्टर से ही हो, तो ये मेरा क्वेश्चन है बेसिकली। सो ऑनलाइन में हमने देखा है कि कपड़े थोड़े सस्ते हो जाते हैं, रिटेल में थोड़े सा कॉस्ट में फर्क आता है, तो ये डिफरेंशिएट मतलब ये कैसे होता है सर? इफ यू बाय ब्रांड, whether करेक्ट it is online or offline, you get the same quality, same pricing, कोई फर्क नहीं है. If you buy करेक्ट करेक्ट। specifically online product which is created for online only, तो उसका फोटो अच्छा दिखेगा आपको. वो प्रोडक्ट आप हाँ मंगवा के देखना पड़ेगा कैसा है, whether it is करेक्ट। meeting your expectation or not. It's like, राइट राइट। आपने कुछ देखा, फोटो देखी, अच्छी लगी, और वो रियल में क्या होगा वो आपको पता नहीं. बट आप जब आपको ब्रांड खरीदते हो तो आपको ब्रांड का प्रोडक्ट ही मिलता है. जो आपने ऑफलाइन खरीदा, वो ऑनलाइन खरीदा, वो एट पार होना चाहिए. करेक्ट। सो आर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इज द सेम. और इस कैटेगरी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि कस्टमर को टच एंड फील करना है. आज अगर राइट कोई राइट राइट कलर का प्रोडक्ट ले रहा है, उसको ट्राई करना है. ट्राई करने के बाद में अगर उसको सूट कर रहा है, नहीं कर रहा, बिकॉज द वाइब्रेंसी ऑफ कलर्स, इट डजंट गो विद एवरी स्किन साइज, स्किन शेड. राइट तो राइट। कस्टमर कैन ओनली डिसाइड आफ्टर ट्राइंग द गारमेंट. व्हाट इज द रियल कॉमन चैलेंज? मतलब मैंने अभी फ्रेंचाइजी ली मैंने, तो व्हाट इज द रियल कॉमन चैलेंज? क्या होता है? पार्ट लाइक फ्रेंचाइज पार्टनर मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर बिफोर साइनिंग द एग्रीमेंट, लाइक उनका कई बार ऐसा थॉट प्रोसेस होता है इन्वेस्टर्स का कि यार मैंने फ्रेंचाइजी ले ली है, अब उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस केस में, राइट? तो उस पे आप कुछ अगर कहना चाहते हो तो प्लीज आप बोल सकते हो सर, बिकॉज ये इन्वेस्टर का थॉट प्रोसेस होता है कि मैंने पैसे लगा दिए, मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, अब अगर बिजनेस नहीं आ रही तो ब्रांड की गलती। फ्रेंचाइजी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर. यस। वो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. उसकी करेक्ट उसकी नीड क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसको करेक्ट जानना जरूरी है. हम लोग बैक एंड पे बैठ के नहीं कर सकते हैं. मुझे नहीं करेक्ट। पता कि आज अगर एक गारमेंट, चार गारमेंट एक प्राइस के बिके हैं, तो वो दैट कस्टमर वाज ए हैप्पी कस्टमर, और जस्ट उसने जस्ट ही बॉट इट फॉर द हैक ऑफ नीड, कि यार चाहिए ले लो यार. सो फ्रेंचाइजी इज अ फ्रंट एंड ऑफ द ब्रांड. उसका फीडबैक, उसकी अंडरस्टैंडिंग विद द कस्टमर, उसको कस्टमर को अपना बनाने के लिए उसकी एफर्ट बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज रिटेल सर नहीं चल सकता है. नहीं चल सकता, राइट राइट राइट। नहीं, ये मोस्टली इन्वेस्टर्स के लिए ही क्वेश्चंस था ये, क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत बहुत मैटर करता है, क्योंकि पैसे आप लगा रहे हो, ब्रांड आपको पूरा सपोर्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनली मार्केटिंग, आपको जो सपोर्ट चाहिए ब्रांड इज बिहाइंड यू, बट फ्रंट पे तो आपको रहना है, आपने पैसे लगाए और आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट डे टू डे ऑपरेशन में चाहिए, अदरवाइज आप ना आओ तो अच्छा है। क्योंकि एब्सोल्युटली. क्योंकि इन्वेस्टर्स का पैसा लगता है सर, तो ब्रांड का मेरा मेरा इमेज है, मेरा मैंने एक मेहनत करके एक ब्रांड बनाया है, तो मेरा भी कहीं ना कहीं वो नाम खराब होता है अगर कोई ब्रांड फेल होता है तो ये नो नो, इन्वेस्टर्स के लिए था सर, इट्स नॉट इजी टू टू बिल्ड अ ब्रांड सर, एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, इट्स और डेली बेसिस पे होता है, ऐसा नहीं कि एक बार बिल्ड कर दिया तो बस अब ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है, नहीं, वी हैव टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी, वी हैव टू मेंटेन दैट नेम, दैट ब्रांड। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. यस यस सर, अभी लेट्स डाइव इनटू द इन्वेस्टमेंट पार्ट, अभी हम थोड़ा देख लेते हैं सो दैट हमारे इन्वेस्टर्स को दिख जाए। तन्वी, कैन वी हैव दैट इन्वेस्टमेंट बाइफरकेशन? सो साइज का ये स्पेसिफिक 1000 स्क्वायर फीट होना चाहिए सर, या थोड़ा बहुत अगर मार्केट लोकेशन अच्छा है तो हम एडजस्ट कर सकते हैं? या मतलब 10-15% तो आपको, देखिए हरी जी, आपको डिजायर्ड लोकेशन भी चाहिए और आपका साइज भी डिजायर्ड चाहिए. ऐसा कभी नहीं होगा. हो सकता है 1000 का
आपको 1200 मिल रहा होगा या 900 मिल रहा होगा, तो यू हैव टू लुक एट द पॉसिबिलिटी, क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है टू, बिकॉज दिस मैट्रिक इज क्रिएटेड कीपिंग ऑन आर सक्सेसफुल मॉडल, जहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट का स्टोर है वहाँ पे सेल जो है ऑप्टिमाइज हो सकती है, ओके हमारी रेंज भी डिस्प्ले हो जाती है पूरी, जिसमें कस्टमर को ईज ऑफ ब्राउजिंग भी रहता है। आज अगर ओके मान लो 500 स्क्वायर फीट की दुकान है और मैं अंदर, मेरे अंदर दुकान में 20 कस्टमर इकट्ठे आ गए, तो कोई भी किसी को कंफर्ट नहीं आएगा, अल्टीमेटली 5 कस्टमर तो उसमें से चले जाएंगे, बिकॉज दे डोंट हैव द एनफ स्पेस टू ब्राउज द प्रोडक्ट। उसको ट्रायल भी करना है तो आपको मिनिमम 2 ट्रायल रूम तो चाहिए ही चाहिए। तो दीज आर द बेस्ड ऑन आर यू नो रिसर्च, जो भी हम ऑलरेडी हमने रिटेल की जो दुकानें हैं हमारी, उसका जो हमारी लर्निंग है, दैट्स अ स्वीट साइज। ओके दैट्स इट एंड initial stock cost is 20 lakh, interior is 15 lakh, equipment cost is 2 lakh. So do we take any security deposit amount? Like most of the clothing brand security amount लेते हैं. So do we take या वी ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है 20 लाख, 20 लाख रुपीज सिक्योरिटी डिपॉजिट अगेंस्ट स्टॉक, security deposit? जिसके सामने Okay. हमारा 60 to 65 लाख रुपीज का सेलेबल वैल्यू का Sale. स्टॉक रहता है। Okay. Okay. Yeah. वर्किंग कैपिटल इज फाइन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 32। सर ऐसा भी तो होता होगा कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, तो कभी कभी उससे कोई स्टोर उससे पहले भी कर लेता होगा मैं आपको एक थोड़ा। एवरेज बता रहा हूँ, देर कैन बी ए मिसमैच, 6 महीने 2 महीने पहले भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है, ये हमारा एवरेज है जो आपको दिया जाए। एवरेज 30 to 30 मंथ इज एवरेज। मार्केटिंग आप लोग करोगे, ब्रांड रेवेन्यू, डिजिटल मीडिया, 30% जो फ्रेंचाइजी को रेवेन्यू मिलेगा उसमें से उसका ऑपेक्स एंड रेंट सैलरी सब डिडक्ट होके मोटा मोटा 16 17 15 16% उसका नेट प्रॉफिट उसके और इसमें पास आएगा। इसमें इसमें ब्यूटी ये है कि कोई भी प्रमोशन होगा, कोई भी इवेंट होगा, कोई भी डिस्काउंट होगा, दैट इज ऑल बॉर्न बाय द कंपनी। ओके फ्रेंचाइजी को राउंड द ईयर, चाहे वो ईएसएस में है या फ्रेश में है या इवेंट में है, उसका कमीशन जो है 30% ही रहेगा। देन भी थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे, कॉस्ट बाइफरकेशन मंथली एनालिसिस पे हम देख लेते हैं एक बार। प्रॉफिट पहुंच, ठीक है। अभी हम स्टोर का एक बार पिक देख लेते हैं। देन हम्म। वी कैन वी हैव दैट। सो टिपिकली क्या रेंज होता है सर प्राइस का, सो दैट कभी अगर मैं मुझे अगर अपनी वाइफ को लेके जाना हो तो मैं टिपिकली प्राइस रेंज देखिए, कुर्तीस का। रेंज स्टार्ट फ्रॉम 999, 999 से ट्रिपल नाइन। अराउंड 5000 6000 तक है जो हमारा फेस्टिव रेंज है। तो नॉर्मली आपको कुर्ता मिल जाता है 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये तक। आपका जो 2 पीस 3 पीस है वो दे स्टार्ट फ्रॉम 1400 से 1500 रुपये से लेके 3 साढ़े 3000 रुपये तक जाता है। जब हम फेस्टिव में जाते हैं तो फेस्टिव में थोड़ा सा हमारा 3000 रुपये से लेके 6000 7000 तक जाता है। प्योर सिल्क भी हम बनाते हैं, जैसे हमारा डोला सिल्क वगैरह बनता है, अबाउट ओके 5 to 7,000 स्क्वायर फीट, 1000 रुपीज। अभी और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर मैं, जस्ट कुछ क्वेश्चंस और। व्हाट इज दिस श्री एम्बिशन एम्बिशियस एक्सपांशन रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 year in terms of store count and market penetration? I think we are limited to North India only. So this year we have already started, moving towards East India. अभी हमने पटना में 2 स्टोर खोले हैं, मुजफ्फरपुर में स्टोर खोला है, वी गॉट अ वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स। साउथ में हम लोग खोल रहे हैं। सो नेक्स्ट 3 to 5 years वी शुड हैव मोर देन 400 स्टोर्स पैन इंडिया, कवरिंग साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो नॉर्थ में तो हम लोग ऑलरेडी, वी हैव मोर देन 100 स्टोर्स। Yes, तो understood. दैट्स द एम्बिशन। हिमांशु, कैन वी मूव टू Q&A बॉक्स सो दैट अभी कुछ क्वेश्चंस हम इन्वेस्टर्स के ले लेते हैं सर। हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड फॉर 100,000 square feet, सॉरी फॉर रिक्वायर्ड फॉर 1,000 square feet स्टोर? 1+2 is required if franchisee is present at the store. Otherwise, 1+3 if franchisee is not active, not sitting at the store. Otherwise, 1+3 is enough for 1000 square feet. What are the typical profit margin across categories? See, the margin is fixed. So
whether it is, EUSS, whether it is any discount sale, whether it is any offer, whether it is no whatever, their ROI is fixed. Whether company gives 30% discount or 50% discount, their ROI is fixed. एक और क्वेश्चन ले लेते, इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बियॉन्ड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 40.25 lakh? After that, we would have the fixed security deposit. After that, the stock is floating, automatically. They don't have to infuse any of the working capital, additional working capital. Whether stock, अगर stock बढ़ता भी है, which is the requirement of the sales, that will not be, needing any further investment for that. Your deposit is fixed irrespective of increase of inventory, unless until you expand your shop from 1000 to 2000 square feet, then the shop size would be doubled. I mean, if that market ask is there कि भाई आपका 1000 स्क्वायर फीट का स्टोर है, इतना ज़्यादा फुटफॉल है कि आप 2000 का कर सकते हो, देन यू हैव टू एडिशनल इन्फ्यूज इन एडिशनल वर्किंग कैपिटल फॉर दैट. एंड मिस्टर नायडू का जो क्वेश्चन था, हाउ आर स्टॉक्स हैंडल्ड, वो लॉजिस्टिक पार्ट के हिसाब से ही वाज आस्किंग. So everything is, dispatched from the back end, and reverse logistic is also arranged from the back end. So they don't need to pay anything. So everything is, handled by the company. What is your current market position in the ethnic wear segment, and who are your top three competitors? I would say Shri doesn't have any competition. So we are competing with the unorganized market where you don't get the, qualitative product. If you talk about the, other brands, we are at least 20 to 30% cheaper than them, which are the national brands. I think one last question. What are the exit or transfer policies for a franchisee? We have about 9 years Okay. agreement, so which is renewable. Exit policy, we can have a lock-in period, maybe mutually what is agreeable between franchisee and the company, that can be worked upon. Okay, and what is your year-on-year revenue growth for the last 5 years? Pre-COVID, we grown 30 to 45% on annual basis. So if you talk about the COVID time and pandemic, 2020-21, I would say we were not retail heavy before pre-COVID. So after COVID, when we started our retail expansion, so we have grown around 15 to 30% annually. What are the biggest operational challenges in the current retail environment? I would say the managing retail, to communicating your customer, to provide your customer a better shopping experience is the biggest challenge. How you maintain the hygiene at your store, how your staff communicate with your customer, that is the biggest challenge. Once you build that ecosystem, you are set to go ahead. You cannot turn back. इसको दुकान को एक मंदिर की तरह खोलिए और अपने कस्टमर को भगवान समझिए, जैसे हम अपने थॉट में बोलते हैं, उसको अच्छा प्रोडक्ट दीजिए, अच्छी प्राइस पे दीजिए, उससे अच्छी तरह से बात कीजिए, उसको अच्छी तरह से डील कीजिए, दैट्स इट. Are there any exclusive territory rights or radius protection policies? Depends on there is no exclusivity, because I would not like to open a shop where my shop is there unless until it is required. We don't open multiple shops because that will create unnecessarily competition for your brand only. Okay, I hope anonymous attendee had got his answer. Merchandise timing. So timing, I have already told you that for us, every month is a new season for us. So depending on which area we are. फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ में अगर देखोगे तो हर महीने का अलग कलेक्शन आता है. साउथ में मेरे को उसको 4 पार्ट में करना पड़ता है. देयर इज फेस्टिविटी एंड देयर इज ए वन सीजन ओनली. सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट वी ट्राई टू कीप फ्रेशनेस एट आवर स्टोर कि मंथली एक कलेक्शन जाना चाहिए, और उसको स्टोर पे कब डिस्प्ले करना है वो बैकएंड टीम आपको एडवाइस करती है. कि मान लो आपको वह 20 डिजाइन आए तो 20 में आज आप 5 करोगे, नेक्स्ट वीक आप 5 और डिस्प्ले करोगे, थर्ड वीक आप 5 और करोगे. सो
every time the customer walks into your store, they should see some freshness at the store at least. Your window changes every Monday, so कुछ ना कुछ नया होना चाहिए. That's the kind of excitement should be at the store level. As a franchisee, I can handle the interior work, or is it necessary to follow the brand guideline? You have to follow the brand guideline, the colors, material, what we, because we want all Shri store look identical. Same. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं अलग बना हुआ है, कहीं अलग, तो कस्टमर विल नॉट बी कन्विंस कि ये वही श्री है जहाँ से मैं खरीदता हूँ या ये कोई अलग श्री है. तो दैट नीड्स टू बी मेंटेन्ड. बाकी आप उसको खुद बनवाओ, आपका कॉन्ट्रैक्टर है, आपको खुद बना सकते हो, बनाओ. वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. वी डोंट टेल यू कि आप हमारे वेंडर से लो, हमारे वेंडर से बनाओ, आप कहीं से ही बनाओ, बट यू फॉलो द ब्रांड गाइडलाइन, सो ऑल द स्टोर लुक्स आइडेंटिकल. And And one more, yes, how the how brand the name brand Shri name is thought. thought. So this is very thoughtful. When we, created this brand name, we kept in mind the Indian women in mind. India में औरत को एक देवी का दर्जा दिया जाता है. तो we, with all due respect to Indian women, we have christened it Shri. She is special. To make her special, we create special garments, special clothing for them. The respect towards the Indian women is, she's a working lady, she's a mother, she's a housewife, she takes care of her family, her kids, their education. So this brand is dedicated to Indian women. Very, very nice thought, sir. Very nice That's thought. the thought behind Shri. Okay, okay. So, thank you so much, sir, for this incredible session. Like today, your insight not only cleared the brand vision, but also provided the deep, actionable clarity that serious investors look for in ethnic wear retail. And we truly appreciate your transparency, sir. Thank you, Harish. Thank you, Tanvi. Thank you, all the listeners. Thank you very much.